Hi guys, how are you? Can you guys hear me now? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी स्क्रीन? Can you hear me and can you see the screen also? Everyone? किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? Nobody can confirm? Anybody beta? Anybody can confirm me that you guys are able to hear me and I can proceed with the class? Dipali? Shall I start now? Beta, we will have to continue with this thing only. With this network only. I do not have the, I think, Wi-Fi access today in the college, and I'm using my mobile phone internet. So tell me if you guys can hear me. आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने अभी आप देखें स्क्रीन पर, अगर आप देखें सो वी हैव गॉट द सिलेबस, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस टाइम टू टाइम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और कौन कौन से अब हमारे फर्दर अब आज कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं. तो अब देखिए, जब मैंने ये सेकेंड यूनिट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट स्टिल आई वुड वांट टू गिव यू गाइस दिस टॉपिक इन मोर डिटेल. 7 C's आपको दिख रहा है? 7 C's हमने सिर्फ एक स्लाइड में पढ़ा था जब हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड यूनिट का. तो 7 C's के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे लास्ट टाइम भी जब हमारा फर्स्ट MCQ हुआ था, और क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया था. ऑल्दो C's जो हैं हमारे पास, इनका क्या फुल फॉर्म है, 7 कौन कौन से हैं हमारे पास C's इन कम्युनिकेशन, हमने वो डिस्कस किया था सिर्फ नेम्स के थ्रू, बट इन डिटेल वी डिड नॉट डू इट. तो आज मैं आपको ये 7 C's का जो टॉपिक है ये कंप्लीट करके दे रही हूँ, विच इज द सेकेंड यूनिट. ठीक है, इसका भी नोट मैं आपको अलग से ऑलरेडी आपके क्लासरूम में मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, और भी जो सेकेंड यूनिट के 2 हमारे पीपीटीज थे उनको भी मैंने स्प्लिट करके टॉपिक वाइज आप लोगों को दे दिया है. सो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है, C का मतलब है कि C stands for something, C stands for some word which has some meaning, और वो वर्ड पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिकेशन में होना चाहिए. Communication we already have studied. We studied what exactly is the personal communication. We studied the official communication. We studied the business communication. उसमें formal, informal बहुत सारे forms हमने पढ़ लिया already. So we all are aware that what exactly is communication. It is basically the transfer of any idea or any information one person wants to inform or transfer to the other person by several means or modes of the communication. जैसे कि वो अदरवाइज कोई साइन लैंग्वेज हो सकता है, कोई वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, या साइन लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है. तो कोई भी कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हो, चाहे वट एवर काइंड वट एवर टाइप कम्युनिकेशन वी आर डिस्कसिंग ऑन,
Every communication should have these 7 C's. आपको ये डायग्राम दिख रहा है? 7 C's. तो आपको ये लर्न करना है these all 7 words. C stands for clear, C stands for correct, C stands for complete, concrete, concise, considered and courteous. Okay, that we all should use these 7 things basically, which are starting from C only, and these are part of any good communication. So if you are trying to make any communication good and proper, then all these 7 things should be there in our communication process, whatever we are following to communicate anything. Clear hai? So basically, if I start 7 C's of communication is a list of principles. Basically ये जो C हैं, ये सारे 7 C's हैं. These points are the principles for written and spoken communications to ensure that they are effective. Means किसी भी communication को effective बनाने के लिए, in order to make any communication, चाहे वो written में कर रहे हो हम, चाहे वो हम spoken या verbal कर रहे हो and not written, तो हर तरह के communication में ये 7 C's होने चाहिए, which stands for clear, correct, complete, concrete, concise, considered and courteous. अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सबका मीनिंग क्या क्या होता है. The 7 C's of communication is a list of principles that you should ensure while all the communications adhere to. The purpose is to ensure that the person you are communicating with hears what you are trying to say. Means कोई भी हम communication करते हैं, so the purpose of the communication is जो person communicate करना चाहता है. For example, I would want to communicate something to you guys. अभी through this class also we are communicating something, right? मैं कुछ communicate कर रही हूँ आप लोगों को इस particular communication के through, जो कि mode है हमारा communication क्या है? Online mode है. And we are choosing verbal communication also. इस क्लास में हम verbal communication के थ्रू और एक digital mode के थ्रू हम ये particular communication करने की कोशिश कर रहे हैं. With which we see now इस communication में भी ये 7 C's होने चाहिए. अगर ये 7 C's नहीं है, so that means the communication is not effective और communication is not proper. ठीक है, तो पहला C जो आता है वो है हमारा C as in clear. क्लियर, कोई भी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए. क्लियर का मतलब है कि इट इज अंडरस्टैंडेबल टू द अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, द वे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सम इंफॉर्मेशन, या कोई भी एक ऐसी चीज जो मैं आपको, या कोई भी एक मैसेज या इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, या मैं आपको पास करना चाहती हूँ, मैं आपको ट्रांसफर करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि आप उसको उस तरह से समझो, ये उसी क्लियर मैनर में होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में, टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द मैसेज. मतलब मुझे एज एन कम्युनिकेटर, अगर आई एम द पर्सन हु इज सेंडिंग द कम्युनिकेशन, सो आई मस्ट बी क्लियर कि मेरा पर्पस क्या है उस मैसेज को करने का. अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास करना चाहती हूँ या कुछ भी है, तो मेरे को बहुत क्लियर है कि मैं आपको आज ये टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, विच इंक्लूड्स these points, and I'm going to make you guys clear or make you guys understand about all these C's of the communication. So I am clear, मतलब जो sender है information का, he should be very much knowing the purpose of the message you are delivering. Purpose of the message समझ आ रहा है? हम कुछ भी बात कर रहे हैं ना, किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, इवन इफ इट इज अ हाय और हेलो और समथिंग, तो एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें भी होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर. हाय भी अगर हम किसी को कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वी आर गिविंग सम मैसेज, वेदर वी आर इंटरेस्टेड, वेदर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और एटलीस्ट वी आर इंटरेस्टेड टू से हाय, और एटलीस्ट वी आर इंटरेस्टेड टू इंटरैक्ट विद समबडी. राइट, हम किसी का अगर इंटरैक्ट होना नहीं चाहते हैं, हम 200 लोगों को सड़क पे रोड पर देखते हैं, हम हर किसी को हाय भी नहीं कहते हैं. सो दैट मीन्स दैट व्हाटएवर वी आर कम्युनिकेटिंग, दैट शुड बी वेरी क्लियर. रेसिपिएंट कौन हुआ? रिसीवर. रेसिपिएंट इज द रिसीवर, शुड बी मेड अवेयर ऑफ व्हाई दे आर रिसीविंग द मैसेज. और अगर जो सेंडर है वो मैसेज जो भेज रहा है, वो रेसिपिएंट को भी ये बहुत क्लियरली अवेयर कराएगा कि उसको वो मैसेज क्यों दिया जा रहा है. For example, if me as a faculty is going to communicate with you all students, तो मेरा मतलब you are all the recipients of this communication, तो मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर रही हूँ इस communication के थ्रू कि ये काम क्यों हो रहा है.
Why we have connected with this class. मैं सबसे पहले आपको आके आज बताती हूँ कि आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं, so that you know that what exactly is the purpose of our communication for today's class or for today's communication, whatever long this communication will go on. We should have that particular clarity also, and recipient should also be okay with that. So secondly, it is also essential that the content of the communication is itself clear. जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है, कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हम रख रहे हैं, हम क्या क्या वर्ड बोलने वाले हैं, वो राइट चॉइस ऑफ वर्ड जो होता है वो कंटेंट होता है। तो वो कंटेंट भी हमें देखना है कि हम सही यूज करें, चाहे वो लिखने के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है तो रिटन कम्युनिकेशन है, और इफ इट इज जस्ट स्पोकन कम्युनिकेशन, देन ऑल्सो we must be very much, it is very essential to actually focus on the content of the communication itself. वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम वर्ड ऐसे यूज कर रहे हैं जो सामने वाले पर्सन को समझ ही ना आए, या मैंने बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जो हो सकता है आप लोगों को क्लियर ही ना हो, या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, है ना। You should avoid jargon, use of simple language, use of simple structure and focus on the core पॉइंट ऑफ योर मैसेज। जो फालतू की चीजें हैं या बीच में हम कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो हम वो करें। अगर वो जरूरी नहीं है बोलना जागल ना, तो हम उसको नहीं बेसिकली यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सिंपल लैंग्वेज यूज करें। अगर हम बहुत ज्यादा सपोज हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है, तो उसमें अगर हम बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि सामने वाले पर्सन को, रिसीवर को समझ नहीं आ रहा, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। सो इन दिस मैनर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, सिंपल लैंग्वेज जो सबको आती हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना। इंग्लिश में भी बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हम यूज करें, बहुत बहुत ऐसे वर्ड्स जो जनरली यूज नहीं होते हम वो यूज करें, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें इंग्लिश को बहुत सिंपल शॉर्ट में रखकर बात करनी चाहिए ताकि सामने वाले आदमी को क्लियरली समझ आ जाए, या फिर अगर अगर डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जरूरत है यूज करने की, तो वहां पर हम वो भी करेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड इज करेक्ट। करेक्ट तो बहुत इजी है। करेक्ट का मतलब है कि हमें जो भी कम्युनिकेशन हम पास करें, कम्युनिकेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और समथिंग दैट शुड बी करेक्ट। करेक्ट का मतलब हुआ कि हमने झूठ नहीं बोलना है। It is essential that both the factual information and the language and the grammar you use are correct. If you're using English, if you're using Hindi, if you're using whatever language, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम फोकस इन 7 C's का इंग्लिश लैंग्वेज पे करेंगे। पर जनरली इन आवर पर्सनल लाइव्स ऑल्सो अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये 7 C's उसमें भी होने चाहिए। तो अगर मैं कहती हूँ कि ग्रामर हमें करेक्ट यूज करनी चाहिए, तो उसका मतलब है मैं अभी इंग्लिश ग्रामर की बात कर रही हूँ। We should be using those sentences which are grammatically correct, जिसमें कि grammatical errors ना हो, is की जगह are ना लिखा हो, have की जगह has ना लिखा हो, या vice versa, I के साथ am आएगा, is नहीं यूज करना है। ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हमें ग्रामेटिकली भी करेक्ट करनी है। और दूसरी चीज की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल का मतलब, फैक्ट का मतलब होता है सच, सच। सो करेक्ट में आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का पॉइंट डाल सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल है, फैक्ट है, एक सच है, वो हम यूज कर रहे हैं, तभी वो करेक्ट होगा। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट नहीं है, झूठ है, या क्रिएटेड है ऑलरेडी, आपने अपने मन से कुछ बना दिया, वो कम्युनिकेशन किसी को पास करो तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। और अगर आपने वो किया, इसका मतलब आपने ठीक कम्युनिकेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने करेक्ट, जो एक सी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, वो करेक्ट वाला प्रिंसिपल आपने अपनी कम्युनिकेशन में फॉलो नहीं करा, आपने झूठ बोल दिया। सो दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड। क्लियर है? If your audience spots errors in either, they will distract you and your credibility will be greatly reduced. Credibility का मतलब होता है, सपोज मुझे कोई चीज आती है, सपोज ये इन्फॉर्मेशन मुझे है, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। इस टॉपिक में सपोज मैंने कुछ आपको गलत पढ़ा दिया, जो कि शायद आप लोगों को पहले से पता है कि गलत है ना। तो मेरी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द रेसिपिएंट, जो इस टाइम पर इस कम्युनिकेशन में आप लोग हैं। इस टाइम पर एक सेकंड होल्ड करना प्लीज गाइस। हाय सर। यस यस या मैं कॉलेज में ही हूँ सर, कॉलेज में सेकंड फ्लोर पे हूँ मैं।
Yeah, no problem. Okay. Thanks. Sorry बेटा, somebody is trying to speak something. क्लियर है? तो करेक्ट का मतलब हो गया कि वट एवर वी आर यूजिंग द करेक्ट लैंग्वेज, यूजिंग द करेक्ट ग्रामर एंड वी आर यूजिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन और द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से हमें ध्यान रखना है। लेट मी जस्ट कनेक्ट। मैम, हाँ बेटा बोलो भव्या। मैम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैम कितने टाइप्स होते हैं? बेटा ये बीच में हमें वो नया टॉपिक कहाँ से आ गया? पुराना टॉपिक भी ऑलरेडी अब डिस्कस्ड। मैम वो एक्चुअली असाइनमेंट में थोड़ा सा रहता था, तो उसमें ना थोड़ा सा डाउट था मुझे। बेटा यू हैव गॉट द नोट्स, ये हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद में वो नेक्स्ट लेक्चर का लूँ। इस लेक्चर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप अभी पूछ लीजिएगा। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं अभी दोबारा से बात लेती हूँ आपकी क्वेरी। ठीक है बेटा, अभी आई जस्ट ओपन द टॉपिक एंड आई शो इट टू यू। लाइक जैसे फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गया, बहुत सारे सोशल बैरियर्स हो गए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ दैट, 5-6 हमने शायद डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ बैरियर्स, और उनके अंदर फिर सब पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। Ajay, what is happening? I am not going to accept this nuisance in my class. Next point is complete. Completeness is often one of the most important thing. यानी कि हम कुछ भी अगर कम्युनिकेशन पास कर रहे हैं, कुछ भी अगर कम्युनिकेशन हम किसी को कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, दैट शुड बी कंप्लीट। मतलब सेंडर से रिसीवर के पास उतनी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जितनी कि रिसीवर को उसकी जरूरत है। रिसीवर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेगा तभी उसको कंप्लीट मैसेज जो आप पास करना चाहते हैं वो मिलेगा। सो कंप्लीटनेस इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है, आधी अधूरी का मतलब विच इज नॉट कंप्लीट, then obviously the message which is passed through that communication will not be that effective, will not be that correct, will not be sufficient enough what we exactly think of. So when we are creating a message, it is important to give the recipient all the information they need to follow your line of reasoning and to reach the same conclusions you have. This level of detail will be different in different situations and you should adjust your communications accordingly. Means the level of detail will be different in different situations. It happens sometimes कि अगर आप किसी एक situation में हैं तो सेम इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए शायद डिफरेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करना पड़े। अगर सपोज आपके पास टाइम कम है, एक लिमिटेड टाइम दिया गया और उस टाइम में आपको बोला गया कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली पास करनी है, तो शायद आपका चॉइस ऑफ वर्ड डिफरेंट हो। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स हम देते हैं सेम कम्युनिकेशन करने के लिए। एट टाइम अभी जैसे सपोज करो हमें एक क्लास के लिए 40 मिनट्स मिले हैं, तो आई मे बी एक्सप्लेनिंग यू द सेम टॉपिक इन वेरी डिटेल थिंग्स, राइट। बट अगर ये चीज हमको बोल दी जाए कि हमें ये टॉपिक 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सो मे बी आई विल नॉट बी गिविंग स्ट्रेस ऑन एवरी पॉइंट इन दैट डिटेल द वे आई एम गिविंग इट इन 40 minutes class, right? So the level of detail will be different in different situations and you should adjust your communications accordingly. अगर हमारे पास कितना टाइम है, क्या सिचुएशन है, किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन हर हाल में हमको कंप्लीट ही देना है, चाहे हम थोड़ा कम टाइम में भी दे रहे हैं या डिफरेंट सिचुएशंस में भी दे रहे हैं, बट इट शुड बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन एडिशन यू शुड ऑल्सो मेक थिंग्स एज इजी एज पॉसिबल फॉर द रेसिपिएंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if you are issuing a call of action, provide explicit guidance on their action. Increasingly, it is common to include things like hyperlink and written communication to auto attach FAQs. FAQs क्या होते हैं? Frequently asked questions जो होते हैं, both of which help audiences access the complete set of information. जैसे कि ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर किसी को हम पास कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कि अगर हम किसी को कोई एक हम कॉल ऑफ एक्शन दे रहे हैं, कॉल ऑफ एक्शन, या मैंने आपको सपोज एक कॉल करके या
बताया कि आपको ये काम करने हैं, 2-4 काम है, ये करना है, आपको ये करना है, मुझे इसके इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं आपको बाद में उसका एक लिंक भी भेजती हूँ ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये तो पास कर देती हूँ ओवर अ कॉल टू एक्शन कि ठीक है आपको असाइनमेंट सबमिट करना है या आपको एमसीक्यू में अपीयर करना है, राइट? लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं कि हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना है या कोई एक लिंक मैं आपको दे देती हूँ जिसके थ्रू आप एमसीक्यूज करते हो, या मैं आपको एक पीडीएफ का कोई लिंक भेजती हूँ जिसके थ्रू आपको असाइनमेंट्स की डिटेल पता चलती है, तो वो कंप्लीटनेस हो गया। अगर मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है जिसमें मैंने बोला ठीक है आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सबमिट कर दो और बात खत्म। तो मैंने अगर आपको वो चीज बाद में उसका रिटर्न में कुछ नहीं दिया या नोट्स, जैसे हम अभी ये स्टडी कर रहे हैं इसके बाद में आपको नोट्स नहीं दिए, तो उसका मतलब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। और हर चीज के नोट्स देने जरूरी नहीं होते, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलवेज, तो हमें ये सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए बाद में उससे रिलेटेड लिंक्स, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा हमें रिटर्न कम्युनिकेशन भी भेजना चाहिए। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में बेटा हमेशा आगे ऐसा रहेगा कि हम जो भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग में भी डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई सारे पॉइंट्स आप अपने मैनेजर से, अपने बॉस से डिस्कस करेंगे, उस चीज को हमें बाद में जाने के बाद रिटर्न में लेके आना पड़ता ही है। रिटर्न कम्युनिकेशन होता ही होता है कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए, सो दैट इट इज ऑन पेपर एंड कल को आपको जरूरत पड़े अगर किसी पर्टिकुलर मीटिंग की डिटेल जानने के लिए, तो हमारे पास वो सब डेटा हो। जैसे कि अब सपोज आज की क्लास है, आज हमने इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है, ऑल दोस थिंग्स, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको फ्यूचर में भी इसका एक्सेस मिल जाएगा कि आप ये सब चीजें देख सकते हो कि क्या हमने इस क्लास में डिस्कस किया, कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या एक्चुअली में कम्युनिकेशन हुआ फ्रॉम द सेंटर टू द रेसिपिएंट्स, या उसके बाद रेसिपिएंट्स का क्या फीडबैक रहा, राइट? कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, नहीं थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अलावा भी वेदर द इंफॉर्मेशन वाज क्लियर और नॉट क्लियर के अलावा ये सारे पॉइंट 7 C's जो भी हैं वो सब कुछ प्रॉपर था या नहीं था। वी कैन ऑलवेज यूज दीज थिंग्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो रिटर्न में हमें बाद में कहीं ना कहीं कुछ वर्बल कम्युनिकेशन का भी प्रूफ रखना पड़ता है, या जो सेंडर है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ रिटर्न में जरूर दे। आप देखेंगे जब आप बिजनेसेस में जाएंगे काम करने, तो मीटिंग्स जो भी होती हैं उन मीटिंग्स, एक मीटिंग रूम में कुछ सपोज 10 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं आधे घंटे की मीटिंग में या 15 मिनट की मीटिंग में, तो जो सेंडर है वो आपको बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग के फॉर्म में कुछ एक मेल पर भेजेगा जरूर। उसमें होगा डिटेल, रिटर्न में होगा कि मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस करे, इसके बारे में ये कहा, इसके बारे में ये कहा है, इस पर्सन को ये करने के लिए बोला, इस पर्सन को ये करने के लिए बोला, इस डेट तक इस पर्सन को ये करके आना है, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग इस दिन करेंगे। वो सारा कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन बाद में स्पोकन के बाद हो जाता है। इफ इट इज मैंडेटरी नेसेसरी तभी वो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है, वरना डिस्कशन के बाद हो सकता है चीजें भूली भी जा सके, रिसीवर ने उतना शायद रिसीव ही नहीं करा। जनरली ये सब चीजें हम बिजनेस कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें करते हैं। इनफॉर्मल में हम कभी नोट्स वोट ऐसा नहीं बनाते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें इतनी जरूरत इस चीज की नहीं है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी देयर विद द सपोर्ट ऑफ सम written communication later on. Now is concrete. हमारा जो communication है that should be concrete also. When I say concrete, when shaping your communication, you must ensure that you are specific and that the logic and messages that you are using fit together. Now, when you are shaping your communication, you must ensure that you are specific and that the logic and the messages that you are using it fits together. Means कि suppose whenever you are trying to explain something or putting some information across the table and you are trying to transfer the information to the other person in front of you, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आप specific बात करें। कंक्रीट है ना, स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि जिस चीज से रिलेटेड बात करनी है हम उस चीज से रिलेटेड बात करें। जैसे कि कोई कम्युनिकेशन हमें स्टार्ट करना है और एक सेंडर है, कोई भी सेंडर, सपोज आप में से कोई एक पर्सन है, उसको कुछ बात करनी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो उस टॉपिक के बारे में ही बात करे, उससे कम्युनिकेट करे, ना कि रादर वो फर्दर आसपास के और टॉपिक्स के बारे में अगर एसेंशियल है, अगर जरूरत है तो डिस्कस करे वो पॉइंट्स।
और अगर मतलब एसेंशियल का मतलब जो भी पॉइंट्स एसेंशियल है या मैंडेटरी है या इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, वही पॉइंट्स स्पेसिफिक हैं उस कम्युनिकेशन के लिए, राइट? तो हमें वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, and all those points are to be part of that communication which we are trying to shape up or which we are trying to actually do with the receiver. और वो सारे मैसेजेस, उनका लॉजिक, हम किस तरह से वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं और क्या किस लॉजिक में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी फिटिंग इनटू व्हाट वी एक्चुअली वांट टू ट्रांसफर एज द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, ठीक है? एंड एवरीथिंग शुड सपोर्ट ईच अदर ऑल्सो, like if I am suppose speaking for this topic called communication or 7 C's of communication, तो 7 C's of communication में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि ऑल टुगेदर दूसरे सब्जेक्ट की बात होने लग जाए, विच इज नॉट गुड। जैसे कि अभी भव्या ने मुझसे एक एग्जाम्पल पूछा या एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं था, ऑल्दो हर क्वेश्चन वाज ओके एंड शी रियली वांटेड टू क्लियर हर डाउट एंड एवरीथिंग, विच इज वेरी गुड, बट इफ वी सी देन दैट वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू दिस टॉपिक. That question was not specific, so we have to be very concrete. When we say we have to be concrete, we have to be very specific. We have to be logical also कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, वो कब बोल रहे हैं, किस टाइम पर बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं. That has to be very logical. क्या वो चीज ठीक है बोलना, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, both should be talking specific with all the logics and everything should be supporting each other. Clear है? Your argument should be based on solid facts and opinions from credible sources, and you should share irrefutable data to support your argument. Generally, जैसे मैंने ऊपर भी बताया एक पॉइंट में कि we should be specifying the facts. तो कुछ भी हम अगर एक आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होता है, when two people are not satisfied or are not on the of the same opinion with regarding certain topic, या कोई बात है, कोई एक कम्युनिकेशन चल रहा है, या कोई एक चीज है, या कोई पॉइंट है, कोई एक फैक्ट ही है, चाहे उस फैक्ट में दो लोग हैं जिनका डिफरेंट ओपिनियन है, ओपिनियन सेम नहीं है, वहां पर आर्ग्यूमेंट होता है. एक पर्सन बोलता है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, अदर पर्सन वुड से नो आई डोंट अग्री विथ यू जो है, और आप जो बोल रहे हो आई डोंट अग्री विद दिस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट. समझ रहे हैं? तो वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हम जब भी कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक बेस होना चाहिए, हम ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं करें. व्हेनेवर वी आर आर्ग्यूइंग विद समथिंग आल्सो, सपोज जैसे कि कोई भी एक चीज है, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. तो अगर कोई पर्सन किसी चीज को पॉजिटिव ले रहा है, दूसरा पर्सन सामने वाला उसको नेगेटिव, जैसे जीडीज में भी होता है, जीडीज में भी अगर कोई पर्सन अपना आर्ग्यूमेंट्स को पॉजिटिव मैनर में सपोर्ट करना चाहता है या नेगेटिव में सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके पास एक बेस होना चाहिए प्रॉपर, जिसके बेसिस पर, और वो बेस शुड बी फैक्चुअल ऑल्सो, फैक्ट्स होने चाहिए उसमें, जिसके बेस पर आपके आर्ग्यूमेंट या कम्युनिकेशन होगा. आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो यू कैन से समवेयर कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, but both the parties should have a solid base or facts or opinions from the credible sources, and you should also share the irrefutable data to support your argument. Means you should have some factual, some related data to that in order that आप उसको prove कर पाएं कि हाँ भाई ये चीज इसी तरह से है. ठीक है? Now it is important to help bring the solid nature of what you have created to life for your audience through examples that show the relevance of your message for them as individuals. देखिए क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे मैं आपको कुछ भी पॉइंट समझाती हूँ, समझाने के बाद मैं आपको आपकी रियल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ कि देखिए आपसे ऐसा हो रहा है, या सपोज मैं अपना और आपका एग्जांपल लेके बहुत सारे टॉपिक्स को समझाती हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रियल टाइम या फैक्चुअल एग्जांपल्स देके अगर मैं आपको समझाती हूँ ना, तो ये चीज आपके दिमाग में याद रह जाती है और आपको भूलता नहीं है वो चीज जो मैंने कम्युनिकेट आपको किया. अगर वो आप बिल्कुल लाइव या रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम करते हैं कोई चीज, सो देन इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अ वेरी नाइस मैनर, और वो कम्युनिकेशन जो है याद रह जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? एक नेक्स्ट इज द सिक्स्थ सी इज कंसाइज. कंसाइज का मतलब होता है
you can say precise basically, जिसको हम बोलते हैं. When communicating message of this nature, it is important to stick to the point and keep your message short and simple. प्रिसाइजली बोलते हैं ना, प्रिसाइजली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, या ये मैं बताना चाहती हूँ, या कंसाइजली मैं चीज बोलूँ, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन को अगर अगर जरूरत है कंसाइज करने की, तो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है. घुमा फिरा के चार बातें अलग बोलनी, दूसरी बात बोल के हमें टॉपिक स्टार्ट करने से बेहतर है कि हम अपना जो पॉइंट बोलना है उस पर स्टिक करें, टू द पॉइंट बात करें और बात खत्म करें. That is what the business communication is meant for. When communicating messages of this nature, it is important to stick to the point and keep your messages short and simple. Don't use 10 words if you can use 5. Don't repeat your messages. मतलब कि अगर कोई कम्युनिकेशन करने के लिए आपको 4-5 लफ्ज बोल के वो बात खत्म हो रही है, कर पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 वर्ड यूज करने हैं. या एक सेंटेंस में अगर कोई बात आपकी पूरी हो पा रही है एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज इन अ कंप्लीट मैनर द वे इट शुड बी, तो फिर वो उतने वर्ड्स यूज करके ही हमें शॉर्ट एंड सिंपल में अपना मैसेज रख के कंसाइजली हमें ये चीज बोलनी चाहिए. हम एक बात बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज किस इंग्लिश. किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, KISS का फुल फॉर्म अगर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, और हम इसको बोलते हैं वी शुड किस इंग्लिश. इंग्लिश का मतलब, किस इंग्लिश का मतलब हमें हमेशा इंग्लिश में जो बात भी करनी कुछ है, हम उसको शॉर्ट और सिंपल रखें, रादर की बहुत लंबा घुमा फिरा के डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करें, वो नहीं करना चाहिए. तो और उसका दूसरा वर्ड होता है किल. किल, कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी करके होता है. तो वी शुड नॉट किल, हमें लॉन्ग एंड लेंदी नहीं रखना है, रादर वी शुड किस इंग्लिश, हमें इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है. क्लियर है, समझ आया. तो कंसाइज पॉइंट भी हमारे कम्युनिकेशन में अगर पॉसिबल है तो हमें डालना चाहिए. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में अपना मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहिए. द मोर यू से द मोर रिस्क इज देयर ऑफ कंफ्यूजन. यानी कि जितना ज्यादा बात, हम बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में, बिजनेस कम्युनिकेशन में जनरली, कि हम जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा पास करने की इन्फॉर्मेशन कोशिश करते हैं ना, उतना ज्यादा रिसीवर को कंफ्यूजन होने का रिस्क रहता है. वो कंफ्यूज भी हो सकता है कि ये भी पॉइंट कहा था, ये भी पॉइंट कहा था, ये भी पॉइंट कहा था, तो सारे ही करने हैं क्या, और सारे नहीं करने हैं. जो करना है मेन हो सकता है वो रह जाए, या उस पर उतना फोकस ना हो पाए. Avoid that risk by focusing solely on the key points you need to deliver. इसीलिए ज्यादा पॉइंट्स ना बोल के, या इरेलेवेंट पॉइंट जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो और रिसीवर सोचे कि मुझे ये सारे काम भी करने हैं, इससे बेहतर है कि हम कोई ऐसा सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज के थ्रू अपना मैसेज ट्रांसफर करें, जिसके थ्रू हम जो है अपने की पॉइंट्स को डिस्कस करें और की पॉइंट को ही डिलीवर करें, और सेंटर को जो इन्फॉर्मेशन हम एक्चुअली में भेजना चाहते हैं टू द पॉइंट वो हम भेज पाए. क्लियर है. कर्टियस होता है कि हम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन जो बात कर रहे हैं किसी से, वो बहुत पोलाइटली बात करेंगे. पोलाइटली, कर्टियस का मतलब पोलाइट होना. पीपल आर नॉट ऑलवेज कर्टियस, मतलब एक तरीके से किसी को चिल्ला के बात करना, है ना, चिल्ला के. अब जहां जहां पर जरूरत ऊंची आवाज में बात करने की नहीं है, वहां पर हमें नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट बी शाउटिंग. किसी के ऊपर भी हम शाउट करके अगर कोई काम करवा रहे हैं, सो दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जो बंदा हमेशा चिल्ला के बात करता है, या बात ठीक से नहीं करता है, पोलाइट मैनर में, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनली बात नहीं करता, आप उससे बात करना चाहेंगे ही नहीं, उससे दूर ही रहना चाहेंगे. एटलीस्ट फॉर दैट टाइम सोचेंगे अरे इसका दिमाग अभी ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे. ऐसे होता है ना ऐसा. तो कर्टियस भी होना चाहिए. कोहेरेंट. नाउ द लास्ट ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब होता है व्हेन योर कम्युनिकेशन, व्हेन इफ योर कम्युनिकेशंस आर नॉट कोहेरेंट, दे विल नॉट बी इफेक्टिव. कोहेरेंस होना जरूरी है हमारे कम्युनिकेशन में. although all the C's which we have studied should be there. हमारी क्लास ना 4 मिनट्स में होने वाली. विल जस्ट क्विकली फिनिश दिस एंड देन मैं भव्या आपके उस क्वेश्चन को कोशिश करती हूँ आंसर करने का भी ओपन करती हूँ. To make sure that your communication are coherent, you should always have logical flow, and your style, tone and language should be consistent throughout. Language should be consistent का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं एक लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के थ्रू हम सेम उस लैंग्वेज में ही हम आगे भी एक फ्लो में बात करें. शुरू से एक फ्लो स्टार्ट करें. ऐसा नहीं हो
कि हम एक फ्लो जो है, उस फ्लो का जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं और जो फर्स्ट पॉइंट है वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं. सो वी शुड बी हेल्पिंग एंड वी शुड मेक श्योर दैट आवर कम्युनिकेशंस आर लॉजिकल एंड स्टेप वाइज फ्लो में आ रहा है प्रॉपर. हमारी टोन भी सेम रह रही है, ऐसा नहीं कहीं पर हम चिल्ला रहे हैं, वी आर चेंजिंग द टोन, वी आर नॉट फॉलोइंग द proper language, we are not consistent enough. In addition to making sure that each communication you issue is coherent within itself, you should also ensure that consistency of messages when delivering multiple communication should also be there. मतलब coherent का एक ये मीनिंग भी है कि जब एक तो हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, फ्लो में बात कर रहे हैं, सेम स्टाइल में बात कर रहे हैं, सेम टोन में बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाना शुरू किया और आधे घंटे के बाद मैं आपसे बहुत ज्यादा मतलब सेम टोन में बात नहीं कर रही हूँ, या अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या थोड़ा लेस इंटरेस्टेड हूँ, या डिसइंटरेस्टेड हो गई आपको बात करने में आपसे. कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए. द मोमेंट हम किसी से बात कर रहे हैं, हम लॉजिकली फ्लो में बात करेंगे. कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे जिस स्टाइल में शुरू किया था वैसे ही उसी स्टाइल में एंड करना. इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं. कंसिस्टेंसी होना कि मैं कंसिस्टेंट हूँ. कंसिस्टेंट का मतलब शुरू से लेकर एंड तक मैं बिल्कुल चेंज नहीं होती. ऐसा नहीं है कि मेरा शुरू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बाद में कम हो जाता है, या पहले कम रहता है, बाद में इंटरेस्ट बढ़ जाता है. आई एम कंसिस्टेंट इनफ. ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात करती है, दूसरे से बात करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम कंसिस्टेंट इनफ थ्रू आउट. ठीक है. तो हमारा कम्युनिकेशन जो हुआ है उसमें सारे 7 C's होने चाहिए क्लियरली, एंड वी शुड बी एबल टू take care of these things, that we are following all these C's. Is everything clear to everyone now? Anything is related to anything related to this topic is pending? ठीक है. Then I'm going to over this class now. आप लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर अभी अटेंड कर लीजिए. भव्या, you can give me a call personally over the phone. ठीक है. हम लोग आपका टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. Yes. चलो, ओके देन. थैंक यू. बाय एवरीवन. Yes, ma'am. बाय बाय. Thank you, ma'am.